I'll be using a pre-recorded video. I have recorded this video from another app. So a very easy language to understand over here. So we'll be going through F block elements today, like what properties and what are lanthanoids, actinoids. Now these lanthanoids and actinoids each contain 14 elements. Lanthanoids elements from lanthanum to lutetium. Yes, सौरभ बोलो. सर डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है. ये डी ब्लॉक का ये डी एंड एफ ब्लॉक इज ऑल टुगेदर ना बेटा. डी ब्लॉक में अपने को हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, हमने दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स देख लिए, उनकी केमिकल रिएक्शंस देख लिए. अब हम लोग एफ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके सर. ओके बेटा. हाँ सर. अच्छा. So F block starts from lanthanum and goes up to lutetium. ठीक है. 14 elements each. Now can someone tell me F block में दो सीरीज है, lanthanoids and actinoids. इसके अंदर दोनों के अंदर स्पेसिफिकली 14 एलिमेंट्स क्यों आ रहा है? Is there any specific reason कि दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स है? Anyone? ऋषिकेश, चवान? चवान, are you there? क्या सर? क्या सर, कैसे हो बेटा? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर विलेज. हाँ ऑब्वियसली तुमको बोल रहा हूँ. अमन. अमन बोल रहे हो? ऋषिकेश चवान नहीं है? नहीं हाँ सर बोलो. हाँ है, ऋषिकेश है, वो थोड़ा बिजी था. ऋषिकेश, ये यस सर. दोनों सीरीज में बोथ ऑफ these series lanthanoids and actinoids, both these series have 14 elements each. Any specific reason why they have 14 elements each? Any idea beta ऋषिकेश? सर उसमें सिर्फ 14 एलिमेंट मतलब बैठ सकते हैं इसलिए. उसमें सिर्फ 14 एलिमेंट्स बैठ सकते हैं, ऐसा? हाँ. ओके. कौशल आयु देयर बेटा? कौशल शर्मा. हाँ सर. हाँ बेटा, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर एफ सेल में से 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. यस. एफ ऋषिकेश, व्हाट डिड कौशल से? एलिमेंट्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स. एफ सबशेल के अंदर मैक्सिमम यू कैन फिल 14 इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? बिकॉज़ इट हैज 7 सबशेल्स, राइट? ये जो एफ ऑर्बिटल है, इसके अंदर 7 ब्लॉक्स रहता है ना. हर एक ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है. टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 14. दैट इज व्हाई 14 इसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रहता है. ठीक है. ये आपके सामने जो है, दिस इज योर लैंथेनॉइड सीरीज. नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स? बिकॉज they are following lanthanum in the periodic table. ठीक है. तो lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. So from La to Lu, all these elements are included under lanthanoids. Tanmay is saying outer electronic configuration is 5d1. बेटा नहीं, थोड़ा अलग रहेगा इसका तन्मय. Not only 5d1, there is going to be we'll see the electronic configuration, don't worry. ठीक है. तो again, you don't need to by heart all the elements and all, but you need to know that there are 14 elements. So these are the 14 elements of your lanthanoid series. ठीक है. दो सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज. एक्टिनॉइड सीरीज से एक्टिनम रहेगा. तो पहले आप लोग ये देख लेते हैं. अपने इंडिया से किसी एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ क्या? I'll have to check that beta. आज तक तो I have not come across, but there have been very prominent scientists who have contributed to the field of research and investigation, and there are really brilliant brains in India who have gone abroad and helped them out. So that is a now जो lanthanum है, इसका properties are resembling very closely to all the lanthanoids.
इसीलिए पीरियोडिक टेबल में ना लैंथेनम के साथ ही हम ये 14 एलिमेंट्स को वहां पे रख देते हैं, एंड देयर नेम इज लैंथेनॉइड because they are resembling very much to the properties of lanthanum which is there in the periodic table. आ जाओ, general symbol for all the lanthanoids for from the cerium to lutetium, ये जो एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स है जिसके F सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगते हैं, F सबशेल में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है. तो इफ यू रिमेंबर नहीं बेटा, वैसा नहीं है. ओके, दैट इज, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट ना, ऐसा नहीं है. ओके, सो when I talk about their general symbol is Ln. Lanthanoids का general symbol is going to be Ln. मतलब Ln, जैसे मैं halogens को X लिखता हूँ, all halogens का general symbol is X. Alkyl group का general symbol is R. वैसे ही लैंथेनॉइड्स का जनरल सिंबल इज Ln. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लुक ओवर हियर. ये जो लैंथेनॉइड्स है इनके लिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज xenon का, तो इसलिए xenon ब्रैकेट में आएगा. नाउ इफ आई लुक एट the general electronic configuration, so it looks something like this, which is shown in front of you. अगर आप देखें तो, so how can I generalize this? I can generalize this (6s2 5d021 4f1 to 14). F orbital में from इलेक्ट्रॉन 1 टू इलेक्ट्रॉन 14 प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा, बट कहीं कहीं 5d के अंदर 1 आएगा. अगेन द रीजन इज, वील सी द रीजन, ठीक है. बट पहला इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू 6s, देन इट इज गोइंग टू 5d एंड देन इट इज गोइंग टू 4f. सो अगर मैं जनरलाइज करूं फॉर f ब्लॉक एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस: ns to n-2 f1 to 14, n-1 d021 ns2. थोड़ा समझा क्या बोला मैंने गाइस? नहीं सर, वापस बताओ. फिर से बताओ सर, फिर से बताओ. फिर से बताते हैं. 6 को अगर मैंने n लिखा, 6 की जगह अगर मैंने n डाला, तो 5 क्या हो जाएगा बेटा? n-1. और 4 क्या हो जाएगा? n-2, बिकॉज 6 इज n ना, 6-2 इज 4, 6-1 इज 5, राइट? तो मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं, तो अगर मैं स्पेसिफिकली लैंथेनॉइड्स का नहीं लिख करके एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो क्या आ जाएगा? ns2 n-1 d021 n-2 f1 to 14. ये समझा? ये जनरल n वाला फंडा समझा? उसके बाद मैं आगे वो बताता हूं. समझा गाइस? हाँ सर, अभी सर वो n दोनों के लिए हो जाएगा ना? किसके? Actinide, lanthanide. हाँ, यस एग्जैक्टली, वो दोनों के लिए हो जाएगा हमारा, करेक्ट. समझा. तो इसलिए मैं बोल रहा था कि एफ ब्लॉक के लिए लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, बट अगर मैं स्पेसिफिकली लैंथेनॉइड्स की बात करूं, तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 4f1 to 14, 5d021 6s2. So these electrons will will progressively start filling in the f orbital. Yes. जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अपने को. अभी जनरली इट इज नॉट गोइंग टू द d orbital. d orbital में जनरली वो नहीं जा रहा है. रीजन बीइंग f orbital ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, ज्यादा क्या बोलते हैं, लेस एनर्जी होगा उसके अंदर, एंड कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, कंपैरेटिवली more stable होगा as compared to 5d. इसीलिए electrons are jumping to 4f orbital directly. But if you see gadolinium में अचानक से बीच में 4f7 5d1 6s2 हो रहा है. Now why is this happening? This is happening here because anybody? सर कौन से एलिमेंट में? Gadolinium. गैडोलिनियम. शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट या फिर कोई और रीजन? कौन सा एलिमेंट, वापस एक बार बोलो.
गैडोलिनियम 64 वाला 64 गैडोलिनियम। सर एफ सबशेल हाफ फिल्ड होने के एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यहाँ पे हाँ, there is a फिर- possibility of half filling the F subshell and that is why this is happening. That is why electron इसको F8 ना करके one electron is going to d orbital because there is a possibility of half filling my F subshell and that is why I am seeing that configuration over there. Very good. कार्तिक क्या नहीं समझा बेटा तुमको? कार्तिक माली हाँ सर। नहीं समझा सर वो आप पीछे समझा रहे थे ना, वो क्या 6 माइनस अभी समझा कि फिर से बताऊं बेटा? फिर से बताओ सर। ओके अगर मैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखूं बेटा, द नियरेस्ट नोबल गैस इज जेनॉन, तो जेनॉन तक का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फिलिंग, पहला 6s में जाएगा, फिर 5d, बट 5d में इलेक्ट्रॉन ना जाकर के इट डायरेक्टली जंप्स टू 4f ऑर्बिटल। तो 4f जो ऑर्बिटल है उसके अंदर प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 to 14। तो इसीलिए मैंने इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा है 4f 1 to 14, मतलब लैंथेनम से लेके लूटेटियम तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर F में भरना शुरू होगा सीरियम से लेके लूटेटियम तक F1 से लेके F14 तक रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं बीच में वी विल सी 5d1 बिकॉज ऑफ दैट हाफ फिलिंग का कॉन्सेप्ट, और 6s2 सब में कॉमन रहेगा, इसलिए मैंने वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा हुआ है। सर वो 5D में 0 से 1 तक ही क्यों है? 5d में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिलिंग, 5d को स्किप करके इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली गोइंग टू 4f ऑर्बिटल। रीजन योर बीइंग इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज़ सर ने आवाज ब्रेक हुआ। सर वॉइस आपका बहुत कम हो गया मतलब। हाय ओके, मैं मार्कर मूव कर रहा था इसलिए। अरे व्हाट वाज आई सेइंग, हां 4f is closer to the nucleus as compared to your 5d orbital. Okay सौरभ? हाँ सर, ओके। कार्तिक लापन समझ लो। ओके गुड। पर बाद में और क्यों नहीं फील होते हैं? बोलो क्या बोल रहे हो? सर और क्यों नहीं फील होते हैं, मतलब 5d1 फिर 5d2 फिर 5d3? नहीं ना, बिकॉज इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर नॉट गुड ना। हाँ समझा। समझ गया बेटा, वो बीच में एक 5d1 इसलिए जा रहा है बिकॉज वो करने से मेरा f ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए। रिमेम्बर हमने इसमें भी देखा था, डी ब्लॉक में भी देखा था ऐसा। हाँ सर। या सर फिर वो 2 के नीचे वो 9 भी तो जा सकता है ना। क्या बोल रहे बच्चे? 4f7 का 5d1 हो तो 4f9 का 4f7 5d2 भी हो सकता है। नहीं, वो वैसा नहीं होगा बिकॉज देखो बच्चे, is there someone who is having the lecture on the road? हाँ सर, किसी का माइक चालू है। भाई किसी का माइक चालू है, आई थिंक यू आर इन द ऑटो और समथिंग। मला आता सांगताय हर्ष प्लीज म्यूट योर माइक। महाजन भाई। हर्ष महाजन। हाँ हो गया। कंटिन्यू सर। Was he driving the auto or something? I don't know. Forget it. Okay. So कराटे का आवाज था वो। नहीं, कराटे का आवाज नहीं था, वो गाड़ी का आवाज था। सब कुछ तुम्हारे जैसा सोता नहीं है बालाजी, shut up. So now, I even forgot. हाँ, अभी उसमें तुम बोल रहे हो 5d2 क्यों नहीं हो रहा है, 5d3 क्यों नहीं हो रहा है? वैसा करने से क्या होगा बच्चे? F तो मेरा स्टेबल हो जाएगा, बट मेरा D अनस्टेबल होता जाएगा। प्लस जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का है, पहले उसको वो लोग भर देंगे एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी वाला। समझे बच्चे? सर फिर इधर कैसे हो रहा है? किधर हो रहा है बेटा? वो गैडोलिनियम में। अरे मेरी भाई, अभी तो हमने बताया ना, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फिलिंग इट हाफ फिल्ड। उसमें 5d1 एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, बट 5d2 5d3 करेंगे तो ज्यादा अनफिल्ड होगा। ज्यादा अनफिल्ड मेरे को नहीं चाहिए ना। ओके सर, समझा बच्चे? हाफ फिल, डायरेक्ट हाफ फिल। डी का कितना कैपेसिटी होता है सर? डी का 10 होता है ना बेटा। 10 ना, तो ये वो 5 होते टाइम, मतलब अभी इधर फॉर एग्जांपल 12 का 5d5 हो सकता है ना? हो सकता है, बट अगेन वहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि 2 हाफ फिल्ड रहने से बेटर
वो जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा बिकॉज इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस दैट वे. बहुत लोग कहते हैं. I know, I agree to your point, but yes, this is as it is. सबके अंदर 6s2 is common. पर ये इलेक्ट्रॉनिक अभी तक हम लोग आगे का टॉपिक पे नहीं गए, but tell me one thing. सबके अंदर 6s2 common है. So what do you think is going to be the common oxidation state for all the lanthanoids? +2. Excellent, excellent, प्लस excellent. 2 Very good. चलो, अच्छा है मतलब. +2 सब एक ही करके मत बोलो. I understood it. Thank you. So वो बाहर है क्या सबसे? भाई मौत. हाँ बेटा, हाँ 6th ऑर्बिटल ना वो सबसे बाहर है, उसके बाद 5th, उसके बाद 4th. तो जो सबसे बाहर वाला है पहले वो निकलेगा, राइट? तो अब अगर देखा जाएगा इन सबके अंदर 6s2 कॉमन है, तो the common oxidation state even without going to the topic you know it is going to be +2. That means you are understanding this concept. ओके. Good. लेकिन वो डी को स्किप क्यों करता है सर? डी को भर 5d को स्किप क्यों करता है? वो तो उसको भरना चाहिए ना एक्चुअली. वो 5d को स्किप इसलिए कर रहा है बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल. बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल व्हाट इज हैपनिंग इज द क्या बोलते हैं अपना वो उस ऑर्बिटल को पहले भरेगा बिकॉज इट इज एट अ लोअर एनर्जी एंड बिकॉज इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस. दैट इज व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सर 4f की एनर्जी कम है 5d से बिकॉज इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस. पर 4f के बाद सीधा 6x. नहीं, पहले 6s उसके बाद 4 है. तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो बेटा. पहला वो सी अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट और क्या बोलते हैं उसको एंटी पेनल्टीमेट शेल. ये जो 4f है ना यहाँ पे उसके दो नाम है. इसको या तो प्री पेनल्टीमेट बोल लो या फिर इसको एंटी पेनल्टीमेट बोल लो. ठीक है? ओके गाइस, इज द कंफ्यूजन गॉन बालाजी एंड सौरभ? यस सर. हाँ ओके सर. ओके ओके. ऐसा let us look at the oxidation state. पूरा भाई ये क्या हो गया? +3 Exactly. common Yes, yes. Now अभी देखो, आप सब लोग ने बोला था कि +2 is common oxidation state, but यहाँ पे the common oxidation state it is showing is +3. Can anybody justify this reason why this is happening? हाँ सर, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसमें 5d में वो सब देना चाहेंगे. भाई सब में थोड़ी डी में इलेक्ट्रॉन है. सबके अंदर डी में थोड़ी इलेक्ट्रॉन है. हाँ सर ना, वही नहीं समझ में आ रहा है कि वो एक में डी में दिया और एक में डी में नहीं दिया सर. ऐसा क्यों हो रहा है? भाई अभी तो हमने कम से कम 2-3 बार डिस्कस किया बच्चे. वो सौरभ, बालाजी प्लीज एक्सप्लेन इट टू सौरभ ना. अरे वो F न्यूक्लियस से ज्यादा पास है ना, तो उसका एनर्जी कम है, तो इसीलिए F में जाते हैं, D को छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन. और वो गैलोडीनियम में क्यों डी में दिया है बालाजी? वो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने से उतना अनस्टेबिलिटी नहीं होता और वो हाफ एक फिल्ड भी हो इलेक्ट्रॉन रहा है, जाने से वो हाफ फिल्ड हो जाएगा एफ वाला, इसलिए. ठीक है? हाँ सर. ओके ओके. अच्छा अच्छा. अभी देखो, अभी f ऑर्बिटल है इन सबके अंदर. ठीक है? ये सबके अंदर जो f ऑर्बिटल है मेरा, वो f ऑर्बिटल के अंदर 7 ब्लॉक्स है. जब तक 7 हाफ फिल्ड होगा तब तक उसके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? एम आई राइट? हाँ. ठीक है? तब तक उसके पास काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इजी टू लूज. They are very easy to give up. They are very easy to form bonds, right? Because they want to make pairs. Yes, no, maybe. Yes sir. Yes, Right? Yes, अच्छा. yes yes अभी वो जो 6s2 है, those 2 electrons they are losing easily because वो एकदम बाहर का शेल है, right? अब F के अंदर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर से everybody loses the क्या बोलते हैं, loses or shares those unpaired electrons easily. जिसकी वजह से ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जल्दी से वो अटेन कर लेता है. सर सिर्फ +3 क्यों? फिर और भी दे सकते हैं. अरे बिकॉज बाकी के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, बट +3 जो ऐसा है वो सब लोग दिखा रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहीं पे है, कहीं पे नहीं है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हिच यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, these are the stable oxidation states of these lanthanoids.
लैंथेनॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो इनका रिएक्शंस बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रहे हैं हमको, दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दे आर मोस्ट शोन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें से सबके अंदर जो कॉमन है दैट इज +3। ओके, अभी यहाँ पे +2 दिखाया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। तो ऐसा अज्यूम मत करना कि यहाँ पे जहां पे +2 नहीं दिया है वो +2 दिखाएगा नहीं, डेफिनेटली वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा, बट इट क्विकली टर्न्स टू +3, दैट इज व्हाट इट मींस। मतलब सर पहले +2 होगा, उसके बाद फिर एक और दे देगा वापस। ऑब्वियसली +2 होने के बाद ही +3 होगा, राइट। वो हमने देखा था ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता रहता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सर फिर वहाँ पे क्यों नहीं दिखाया +2? बिकॉज वो उसमें स्टेबल नहीं रहता है, वो जल्दी से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में ज्यादा नहीं देखने को मिलता है या बहुत ही रेयर होता है, इसलिए वी आर नॉट शोइंग दिस इन द टेबल, वी आर शोइंग the most common and we are showing the most seen, the most available oxidation state of these elements in this table. तो मतलब जिन लोगों का +2 दिखाया हुआ है वो उसमें स्टेबल रह सकते हैं ना? हाँ, वो नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स में दिखता है, इसलिए वो वहां पे लिखा हुआ है। सर जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसको बस 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा तो वो +2 में रुक जाएगा। एग्जैक्टली, you're right Balaji. समझे बच्चे? Anybody want to discuss more on this or can we go ahead? Okay guys, please ask if anybody has any doubt. I am listening. सर आगे तो बाद में डाउट आ सकता है। सर गो अहेड। Okay, okay, okay. ठीक है, ठीक है। These elements are showing +2 and +4 or oxidation states because by losing those electrons or by sharing those electrons, they become half filled or completely filled. Considering orbitals are there, let us have examples over here. Examples देखिए, just hold on. सीरियम, टर्बियम, यूरोपियम एंड यट्रबियम, ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन 4 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दे रखा है। ये चारों एलिमेंट्स में स्टार्टिंग के 2 में +4 ऑक्सीडेशन पाया जाता है और लास्ट के 2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रोमिनेंट। व्हाई इज दिस? बिकॉज आफ्टर दैट इन दैट +4 स्टेट उसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 4f0 वेकेंट हो जा रहा है, ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया, स्टेबल। टर्बियम में देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4f7 हो जाता है जिसकी वजह से वो हाफ फिल्ड हो जाता है, स्टेबल। यूरोपियम में देखो +2 4f7, यट्रबियम में देखो +2 4f14 completely filled. These are the reasons why they are showing these oxidation states over here. Okay Balaji, okay Saurabh, okay others? Yes sir. ये इसको लिखना है तो लिख लो बच्चे प्लीज, ऐसा शायद टेक्स्ट बुक में नहीं दिया रहेगा आपको। सर आप वो लिंक भेज दो। और भाई कामचोरी की हद होती है, लिख ले। स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। लिखना है, लिखो। You want that Mopsy? You want what? Hello? What? Guys, what is wrong with you guys? You sit in a corner and listen to lectures, right? ठीक है, should I go ahead? Yes, sir. और नहीं बोला? Yes sir. हो गया, हो गया। Over here. हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा डायग्राम अगर कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए आएगा, अगर ऐसा स्पेसिफिक ये आएगा आंसर, तो वो बना देने का, ये जो सामने है आपके बना देने का,
और उसको वर्ड्स में लिख देने का, सिंपल है। सबका सब एक साथ नहीं पूछेंगे, कोई स्पेसिफिकली अगर पूछा तो, but see I'm not, the problem is I don't want to give any general statement because I know my students, if I tell them कि भाई ये ज्यादा नहीं पूछते, you will leave it, you will not study it, but always remember बेटा, भले 12th में पूछे ना पूछे, बट हम लोग को एंट्रेंस देना है, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं पूछेंगे कि वो नहीं पूछेंगे, Yes, सब sir. पूछेंगे, राइट? तो ये चैप्टर में से कुछ स्पेसिफिक क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हैं which we are moving towards to, वो questions are more prominent from this chapter. That doesn't mean कि दूसरे questions नहीं आएंगे. Now let's see that lanthanoids are not showing variable oxidation state like D block elements. Let us see the reason for this. ठीक है? Now D block elements में क्या सीन है? ये जो D block elements है, उठूं मैं? D block elements में ये जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इन योर डी सबशेल, n-1 डी सबशेल, ठीक है, विच आर रेडिली अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर रेडिली अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इन योर डी सबशेल. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 3D सीरीज, बिकॉज वो जस्ट वैलेंस शेल के अंदर वाला है. बट अगर मैं लैंथेनॉइड्स की बात करूं तो उसका वैलेंस शेल्स आर प्रेजेंट इन n-2 ऑर्बिटल, सो दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज उससे पहले 2 ऑर्बिटल्स है. भले ही डी में कुछ नहीं है, बट देयर इज अ एनर्जी लेवल बैरियर ओवर देयर. द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड टू गेट ट्रांसफर्ड, इट हैज टू क्रॉस दोस एनर्जी लेवल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? ठीक है, दिस बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, राइट? So lanthanoids exhibit only limited oxidation state with +3 as the common oxidation state. Guys, please mic बंद रखो ना if it is not required. ठीक है बच्चे, ये आंसर लिख लो. It's a very nicely written answer. Guys, I'm requesting please mute your mic. It is disturbing others, guys. How can you unmute yourself all of a sudden in between here? Yeah, guys, everybody please note down this answer. It is a very nicely written language for the answer. लिख लिया सबने? Saurabh, no unnecessary questions, beta, please. Guys, have you written this down? No. Yes, sir. Screenshot, written down whatever you want. Yes, yes. Yes, हाँ. sir. Okay. ले लिया सर. लेकिन लिंक तो भेजना, क्या बोल रहे बेटा? लिंक भेज दो ना सर प्लीज. अरे भाई भेज देंगे लिंक. इसका लिंक नहीं मिलेगा, ये मैंने मेरे फोन से रिकॉर्ड किया. आई विल टेल यू व्हिच ऐप टू डाउनलोड फॉर दिस. इट इज वेरी इजी. चल अभी बता दो ना. एक मिनट होल्ड ऑन, मैं बताता हूं अभी. सर चैट पे शेयर कर दो. क्या कर दूं? अभी सर शेयर कर दो ना वो चैट बॉक्स में. अरे भाई रुक और जा. उधर नाम दिख रहा है कुछ तो, कलर्स टिकटॉक नहीं, दैट इज नॉट द ऐप. वो तो उसका वीडियो जिसने बनाया उसका, अरे किधर गया अभी? तो इसमें था अन एकेडमी. नहीं, इट्स नॉट अन अकेडमी, नॉनसेंस. G Academy. Following. नहीं बच्चे, इट इज नॉट दैट. कैन यू होल्ड ऑन? कैन यू स्टॉप गेसिंग? इफ यू आर डन विद दिस, आई विल शेयर मेरी. डन. Scholar's Wing. Hold on, I'm writing it in the chat box. मैंने चैट बॉक्स में ना क्या बोलते हैं ऐप का नाम भेज दिया है. स्कॉलर्स विंग करके ऐप है. वो ऐप के अंदर ना यू गेट दीज नाइसली मेड क्या बोलते हैं वीडियोस. ठीक है, बट yeah, it is free, but for downloading it you have to pay it. So I couldn't download because the paying part was very high, so I have recorded it in other phone. If
you understand. ठीक है, इसलिए वो स्क्रीन ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ पे. तो you can go through the concepts over there. It's very nice. They're very nice videos. ठीक है. वो D Block का भी मैंने वहीं से लिया था. D Block वाला जो था, it was available on YouTube, so I could download it. It's a free app, home, download it. ठीक है, आप यूज कर सकते हो उसको. सर वो लोग हिंदी बोलते हैं क्या इंग्लिश में बोलते हैं? पूरा भाई पढ़ तो सकते हो तुम. ये इंग्लिश में ही लिखा रहेगा और इंग्लिश ही बोलेंगे बच्चे. ठीक है, किसी काम का नहीं है. कुछ डाउट रहेगा तो सौरभ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ना. अगर हाँ भाई सर. ओके. Now, let us see the general properties of lanthanoids. Lanthanoids are silvery white soft metals. Hardness increases with increase in atomic number. Now, this is because as the atomic number increases, their size is decreasing. उनका size कम होता है. Size कम होने से packing और close हो जाएगा. Packing और close होने की वजह से hardness increase होगा. Simple as that. Good conductors of heat and electricity, because again they are metals, they have free electrons. Melting points is going to be high in the range of 1000 to 1200 Kelvin. Samarium is a metal which is having strong bonds. जिस तरह से हमने देखा colored ions are there in D block का elements, in D block का ions. Similarly, lanthanides also they form colored ions. Again, the reason is partially filled F electrons, because of which FF transition is occurring. Examples are euphorium E plus, F incompletely filled है, इसलिए कलर होगा. बट La3 plus and Lu3 plus इसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स हो जा रहे हैं La3 plus के अंदर, और Lu3 plus के अंदर कंप्लीटली फिल्ड F ऑर्बिटल है, इसीलिए वो दोनों कलरलेस रहेंगे. हेलो सर, ये सारे एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होंगे ना? नहीं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते बेटा. फिर यूज किधर होते हैं? ये तो रेडियो एक्टिव है ना सर? नहीं बेटा, इसके अंदर रेडियो एक्टिव, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम लोग को एक्टिनियम में मिलेंगे, वहां पे रेडियो एक्टिविज्म आएगा. ठीक है, हाँ अगले पढ़ो. होशियारी. ठीक है, ये ये लिख लिया बेटा. Guys, is this done? Can I move ahead? Yes, no, maybe anything, something. Yes sir. ठीक है, I am showing you this video because it is very well organized and written question to question. तो आप अगर इस तरीके से भी अपने आंसर्स लिखोगे ना with some additional words, trust me, your answers are going to be very presentive and to the point. That is why I am using such videos. I hope you understand that. Now, if you look at magnetic properties, they are going to be paramagnetic. Paramagnetic क्यों? Because इसके अंदर unpaired electrons हैं. But जो एलिमेंट्स के अंदर F में F empty रहेगा और F के अंदर completely filled orbitals रहेगा, तभी मैग्नेटिज्म नहीं दिखाएंगे. It's but obvious because paramagnetism के लिए I need electron. I need paired electrons. तो La3 plus, C4 plus, Yb2 plus, Lu3 plus. Guys, don't do that. And Lu3 plus. These ions, these elements in their ionic state are not going to show magnetism because they are either empty F orbital or they are having complete orbital. Even if you are not writing, please take screenshots and write it down later. I'm again repeating, these are very well written points which will help you to write down the answer, which will help you make your life easier. So just in case if you are avoiding and ignoring this. ऐसा. Now, अभी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. Now, ionization energy, amount of
energy required to remove the most loosely bonded electrons in the outermost shells. अब इसका तो C नीचे अलग है. Outermost shell सबके अंदर there are two s electrons. S electrons less energy level, easily removable, away far from the nucleus. ठीक है, having shielding effect and all. तो first ionization enthalpy is going to be low. Second is going to be higher, and third is going to be high. ठीक है, Yes. ठीक है guys, are you understanding this? Yes, sir. Ionization enthalpy, this is something which we have done in 9th and 10th also, 10th and 11th. अभी देखो +2 +3 +4 देखा है. The lanthanide having +4 oxidation state are acting as strong oxidizing agents. They are acting as strong oxidizing agents. Oxidizing agents बोले तो खुद reduce को oxidize करेंगे. Ce4+ ion जो रहेगा, it will accept a electron and reduce to Ce3+ oxidation state, which is the common oxidation state of lanthanoid series. And the lanthanoids with +2 oxidation state, they will act as strong reducing agents. By losing electron, they will go to +3 stage. Losing electron मतलब खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस करेगा. Right? It itself getting reduced by oxidizing others is called as oxidizing agent, and itself getting oxidized by reducing others is called as reducing agent. अभी इनका common oxidation state is +3. तो जो +4 वाले elements हैं, they will accept electron to turn to +3. So they are acting as oxidizing agents. +2 वाले जो हैं, they will lose electron to form +3 to act as reducing agent. अच्छे से explanation दिया है with आपका example over here. Okay, I'm connected to everyone, right? You guys can hear me? Yes, sir. Okay. So you have taken the screenshot, written it down, whatever you wish. Now let us see the chemical reactivity of lanthanoids. Now this is something weird. हाँ सर, दोनों साइड क्या इंक्रीज ही हो रही है बीच में से. नहीं बेटा, वो इंक्रीज डिक्रीज का साइन नहीं है. इट्स जस्ट कवरिंग अप द लैंथेनॉइड का सीरीज. वो एरो उसके लिए, वो इंक्रीजिंग के लिए नहीं है बच्चे. केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में क्या बोल रहा है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अर्लियर मेंबर्स, जो स्टार्टिंग के मेंबर्स है, दे बिहेव सिमिलर टू कैल्शियम, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम. मतलब उनका केमिकल रिएक्टिविटी, इट दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम. एनी रैंडम गेस व्हाई ये लाइन, ऐसा लाइन क्यों लिखा है ये? Let me see if you can guess it. It's very easy बेटा. Just use थोड़ा सा brain. स्टार्टिंग के जो मेंबर्स हैं वो कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं. कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं मतलब वो कैल्शियम नहीं बनते बेटा. Their chemical properties are similar to that of calcium. And आगे के एलिमेंट्स जो हैं with increasing atomic number they behave like aluminium. Any random guess why? आदित्य शिंदे, are you there? कल भी नहीं थे तुम, आज हो क्या? आदि, ये कल भी शांत था, आज भी शांत है. ये मुझे लगता है कि बस. हेलो सर. हाँ हेलो. कौन है? हाँ सर. बोला आदित्य. हाँ सर. अरे आप आदित्य बोल रहे हो? मैंने तो कल भी नाम लिया. हाँ, अभी सो के उठा लगता है. आदित्य. नहीं सर. अच्छा हाँ, सर. आदित्य, ये स्टेटमेंट देखो. हाँ,
The earlier members of lanthanoids, they behave chemically like calcium, while as the atomic number increases across the period, across this series, तभी they behave like aluminium. Any random guess ऐसा क्यों बोला है उसने? सर नहीं मालूम। Okay, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. I will Manya, are you there बेटा? Manya. हेलो Hi beta, are you there? हाँ बोलो। Oh my God, you are singing. ये इसका आंसर पता है बेटा तुमको? Why they are saying? Why is he saying कि first it's similar to calcium and then it is similar to aluminium? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। थोड़ा सा. नहीं सर नहीं पता। कोई बात नहीं. ओके चलेगा. ईशा आनंद, are you there? No, she's not there. Okay. Let me ask this. Sahil. Shut up. Sahil. हेलो. साहिल सागर हो ना तुम? नहीं. तुम वो साहिल हो जिसको मैं हमेशा सागर बोलता हूँ? हाँ वही. अच्छा. इसका आइडिया बेटा? Anything? Why it is happening so? नहीं सर. No idea. सौरभ, any idea बच्चा? रजक? नहीं सर। बाला? मैं ट्राई करूँ सर? कौन है तुम? अमन? सर अमन बोल रहा हूँ. अमन, हाँ. ओम, can you answer this? ओम पांडे? सर नहीं समझ रहा मेरे को. बाला जी बोल रहा. अच्छा. कृष्णा दुबे? हेलो सर. बेटा. हेलो सर. हाँ बोलो. हेलो क्या कर रहे हो? एक मिनट सर. हाँ अभी बोलो. क्या बोलूं? हाँ आप पूछ रहे थे ना सर. अरे भाई कब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ये कोई क्वेश्चन आंसर पता है? नहीं सर. ओके कोई बात नहीं बेटा. अपना यस अमन ट्राई. अमन आर यू देयर? ये तुम लोग गूगल करके आंसर मत दो. हाँ सॉरी सर. हाँ बोल बच्चे बोल. हाँ सर वो ना मैं ऐसा सोच रहा था कि वो कैल्शियम ना एस ब्लॉक एलिमेंट है और एल्यूमिनियम पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये वाला जो बीच वाला वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है. जब क्या हम लोग ये साइड में रहते हैं ना, आई मीन लेफ्ट साइड में रहते हैं. ओके. तब ना उसमें जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना सर. ओके ठीक है. आगे मत बढ़ो. बट जो तुम्हारा स्टार्टिंग का द वे यू थॉट वाज आई अप्रिशिएट इट, ऑल्दो इट इज नॉट 100% करेक्ट, बट I appreciate it because you at least gave it a thought. You actually visualized the periodic table, so I appreciate your thought beta. Good, but not it's not आगे जो आप बोल रहे थे it was not related, but जो starting में बोला we can relate to that. Yes. आयुष दुबे. सर. नहीं रुको तुम. आयुष. यस सर. बेटा any idea? क्या सर? मैंने रिपीट करना कुछ भी. ओम बोल रहा है इलेक्ट्रिक फीलिंग से कुछ रिलेटेड. ओके लेट मी गिव यू अ हिंट. आकांक्षा, वुड यू लाइक टू ट्राई बेटा? आकांक्षा जोजी. हेलो. हाँ सर वो कैल्शियम 4s2 उसका एंडिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड समवट सिमिलर लैंथेनॉइड. very close. So if you see those starting elements +2 oxidation state, वो generally they will try to show. Okay? And when the atomic number is increasing, the common oxidation state becomes dominant, which is +3. Aluminium का oxidation state is +3. Calcium का oxidation state is +2. Okay, guys? चिंग बोलता है shielding effect. Shielding effect reason आएगा बेटा हर्ष आगे, यहाँ पे नहीं है. Guys, did you listen to what did I say? Repeat. Calcium का oxidation state is +2.
एंड एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। तो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 जिसकी हम बात कर रहे थे वो डोमिनेंट होने लगता है अक्रॉस द सीरीज। एंड स्टार्टिंग वाले क्यों कैल्शियम का सिमिलर दिखाते हैं, बिकॉज कैल्शियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड वो एलिमेंट्स भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ओके सर कहाँ तक दिखाते हैं? कहां तक दिखाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वी विल फाइंड आउट। ठीक है, see now ln is the general formula for all lanthanoids। तो ये ln की जगह आप लैंथेनॉइड सीरीज में से कोई भी एलिमेंट उठा करके उसका सिंबल यहाँ पे रिप्लेस करो, यू विल गेट द रिएक्शन फॉर दैट एलिमेंट विथ कार्बन। they form carbides ln3c ln2 ln2c3 lnc। so with carbon they are forming carbides depending on what oxidation state they are showing। ठीक है, when they are heated with sulfur and nitrogen they are forming sulfides and nitrides। ना आपको Ln2C3 लिखा हुआ है which is wrong, वो Ln2S3 होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो उसको चेंज कर लेना। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मत लेना वरना फिर से डाउट हो जाएगा। कॉमन रिएक्शंस है, कॉमन रिएक्शंस है, एक कॉमन रिएक्शंस लिख के ले लो बेटा, ज्यादा मगजमारी नहीं है इनके अंदर, तो प्लीज जस्ट राइट इट डाउन, वेरी इजी टू रिमेंबर। ऑल्सो जनरल रिएक्शंस है। हेलो सर। हाँ बेटा, डाउट था आपको। बोलो बेटा। सर वो जो वहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है, आवाज कम आ रही है बेटा आपकी, क्या बोल रहे हो? सर जो वहाँ पर 3 केमिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं लैंथेनाइड के कार्बन के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो सर उसको बाद में बैलेंस किया होगा ना? उसको क्या सर उसको बाद में बैलेंस किया होगा ना? बैलेंस yes exactly, वो बैलेंस किया है। it's showing the suitable oxidation state of that particular lanthanoid वहां पर। हाँ सर, तो अगर उसको बाद में बैलेंस किया है तो सर मतलब पहले तो हम लोग Ln और C लेंगे ना पहले। yes, तो सर अगर हम लोग तीनों बार Ln + C ले रहे हैं तो बाद में जो उसकी बैलेंसिंग है वो डिफरेंट क्यों हो रही है इसे? वो बैलेंस मैंने अभी उसका आंसर आपको मैंने वही दिया बच्चे, कि जो लैंथेनॉइड रिस्पेक्टिव लैंथेनॉइड जो मैंने लिया है वो कार्बन के साथ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +2 दिखा रहा है, +3 दिखा रहा है या +4 दिखा रहा है, अकॉर्डिंगली वो कंपाउंड बन रहा है। समझे बच्चे? हाँ सर, समझा। यस सर। When it's treated with dilute acid, they will release hydrogen because at the end they are metal। ये लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा सबने वो? We are moving to a very important question। लास्ट वाला दिखाओ ना सर। They liberate hydrogen gas with dilute acid because they are metals ना, metals के साथ किसी भी एसिड को रिएक्ट करोगे तो they will liberate hydrogen gas। इसके बाद का जो टॉपिक है ना बेटा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड में क्वेश्चन, इजी है। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले भी सुना होगा आप लोग ने अबाउट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? नहीं सर, नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं सुना है अबाउट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? नहीं सुना है। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी पढ़ेंगे। सुना है, देखा सौरभ ने सुना, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। हाँ सर, नाम लेते हुए सुना है। ओह माय गॉड, ओके। देखा सर। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसका इफेक्ट्स। So let us understand what is this lanthanide contraction. Guys, please pay attention. This is an important topic. It's the most repeated questions in your board examinations. So in simple, I'll tell you what is lanthanide contraction in a very simple language. The size of the elements in this lanthanoid ka series, ये जो element का size है, it is continuously decreasing. It is continuously decreasing. yes। ठीक है, so let us see what is this concept। मतलब उसका एटॉमिक रेडियस वाला साइज क्या? yes obviously बेटा, वही साइज, और कौन सा साइज होगा उसका? एटॉमिक रेडियस का साइज, एटॉमिक रेडियस का साइज से ही आयनिक रेडियस भी इफेक्ट होगा, सिंपल एज दैट। ओके, now see this,
हम लोग ने डी ब्लॉक में ऐसा देखा था, साइज वेरिएशन इन द साइज। डी ब्लॉक का जो हमने वो ग्राफ देखा था, एलिमेंट्स में जो डिक्रीज इन साइज है, इट वाज नॉट कांस्टेंट, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। पहले एकदम कंसिस्टेंटली नीचे हो रहा है, फिर फ्लैट, फिर ऊपर। बट इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स देयर इज अ कंसिस्टेंट डिक्रीज इन साइज। अगर आप देखो तो एक मस्त नीचे की तरफ कर्व जाता है फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम। So this continuous decrease in size. Now, why is this happening? This thing, this continuous. Your voice is fluctuating. Sir, voice ना lag हो रहा है. Okay. Cool. Am I audible now properly? Yes. Okay. Yeah. Okay. So now, if you look at it now, this continuous decrease in size, this continuous falling of the size from lanthanum to lutetium, this phenomenon is called as lanthanoid contraction. Now, let us have a look at this. In lanthanoids, what is happening? The last valence electrons, they are getting added to the inner orbitals. अगर आप ये स्क्रीन पे डायग्राम देखोगे तो लास्ट ऑर्बिट देखो बेटा, जो 6th ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके अंदर एक और ऑर्बिट है, फिर उसके अंदर जो ऑर्बिट है, सो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट। लास्ट वाला इज अल्टीमेट, सेकेंड लास्ट इज पेनल्टीमेट एंड थर्ड लास्ट इज एंटी पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट शेल। तो ये प्री पेनल्टीमेट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। Now f orbitals, hello, mic test 1 2 3, hello sir 1 2 3 चल रहा है। कुछ बोले आपने? नहीं सर, वही थर्ड लास्ट में ही मतलब ज्यादा रहता है ना। yes Om. So f orbitals show very low shielding effect. f orbital का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका shielding effect बहुत ही पुअर रहता है। So the effect or influence of the shielding effect on atomic size is almost negligible. Shielding effect सबको पता है। By this time everybody knows what is shielding effect. Now what is the relation between atomic size and shielding effect बेटा? Shielding effect अगर ज्यादा हुआ तो atomic size भी ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। Yes sir. राइट? शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो एटॉमिक साइज भी ज्यादा रहेगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो एटॉमिक साइज भी कम रहेगा। अब यहाँ पे सीन ऐसा है, ये जो f ऑर्बिटल है इनका जो शेप है इट्स डिफ्यूज्ड, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट दे आर कंटिन्यूअसली रिपेलिंग अगेंस्ट ईच अदर। बिकॉज ऑफ दिस they are not being able to provide a strong shielding effect for the last shell electrons from the nucleus, जिसकी वजह से हम उस shielding effect is almost negligible and the nucleus has a good control on the last shell electrons. What is going to happen if the nucleus has a good control on the last shell electrons? The size will shrink, right? Nucleus अगर last shell के electrons के ऊपर control रखेगा तो मेरा orbital जो है वो shrink होगा because there is attraction between the nucleus and the last shell electrons. सर छोटा होएगा ना? अरे भाई shrink का छोटा एक ही बात है ना। हाँ वही सॉरी। Okay. Is fast or are you understanding? Sorry sir. Sorry for what? Sir, I didn't got it. Okay, you didn't get it. Cool. Where did you lose the train? Sir, shielding. Sir, हाँ बोलो। From the start itself. From the start itself. Okay. कौन बोल रहा है बेटा? अमन बोल रहा हूँ। अमन बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, एंड और किसी को डाउट है प्लीज बताओ, अभी पूछो। इसमें सर? इसी में ये अलग ही प्राणी है। हाँ इसी में बेटा जो हम लोग कर रहे हैं अभी, उसी में। नहीं सर, नहीं डाउट। Very good. I'm so proud of you. Yes. Anybody else? सर मुझे भी नहीं समझा। Okay बेटा, ठीक है। Anyone else? Okay, चलो fine. I'll repeat it for everyone. सर मुझे भी ले। हाँ बेटा, सबको। चलो। Now see this. आपके सामने F block elements है। F block elements में the valence electron is entering the pre-penultimate shell. Last shell नहीं भरता है, सेकेंड लास्ट शेल नहीं भरता है, बट
थर्ड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द थर्ड शेल इज ज्यादा, मैक्सिमम। अभी ये थर्ड शेल में कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं? ये एफ ऑर्बिटल में जा रहे हैं, एफ ऑर्बिटल में जा रहे हैं। थर्ड लास्ट है, नॉट द थर्ड लास्ट शेल। तो एफ ऑर्बिटल में जा रहे हैं, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शील्डिंग इफेक्ट का थिंग, जितना लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना बड़ा मेरा एटॉमिक साइज होगा। What does shielding effect do? The electrons in the inner orbitals, they act as a shield, they act as a screen between the last shell electrons and the nucleus. वो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन ना हो। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो मेरा एटम का साइज बढ़ेगा। बट एफ ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही रिपेल करते रहते हैं। एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत ही डिफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे पाता है। इफ द पर्सन हु इज गार्डिंग द गेट, इफ ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, will the security be strong? No, it cannot be strong. Since the shielding effect is poor, although there are so many electrons in the third last orbital, they are not able to provide the necessary shielding effect. Because of which the Sir, but why so? I just gave you the reason, beta. Because these electrons are in f orbital. F orbital का जो shape है, that shape is very diffuse. It is not a well-defined shape. Because of which these electrons are not क्या बोलते हैं, not aligning in a proper direction, and they are continuously repelling amongst each other. Because of this continuous repulsion amongst each other, they are providing poor shielding effect. जो आपस में ही लड़ रहे हैं वो किस तरह से they are able to guide the last shell electrons. अब ये लास्ट शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these two electrons can easily be attracted by the nucleus because बीच वाला electrons are not giving strong shielding effect. Now, since the last shell electrons are being attracted by the nucleus, they are being pulled inside. If they are being pulled inside, that means the atomic size is decreasing. And as we move across this series, this shielding effect goes on decreasing, becoming poorer because f orbitals add होते जा रहे हैं, f electrons add होते जा रहे हैं, and that is why the size is continuously decreasing. समझा बेटा सबको? Yes sir, मुझे समझा। सर थोड़ा पानी पी लो। I swear to God, man, seriously. Guys, can I have a glass of water, please? You can have half liter. Yes, sir. Oh, shut up. सर हम कैसे दे? मांग रहा हूँ मैं, मेरे घर वालों से मांग रहा हूँ। साहिल, did you understand now? बेटा तुम्हारा मैसेज मैंने अभी देखा, नहीं समझा वाला। Yes sir, समझा। ठीक है। Everybody, Aman, did you get this, बेटा? बोला सर मैंने। अच्छा, तुमने बोल दिया, ठीक है। रजक से नहीं पूछूंगा because रजक को पहले ही समझ गया था। बाला, ओम, कृष्णा, सर all the पहले बार में ही girls, समझा था। all the boys and others, everybody has understood?